Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. You may sit down. And you have to close your eyes right now. Yes. Just close your eyes. Be serious.
And nobody going to laugh now. Okay? There is a time for laugh, but now is not the time for laugh. I'm serious. It's a serious business. When any other spirit come in the presence of the Lord, it's a very serious business. And you remember in the book of Job, याकूब की कलाम, जब खुदा के लोग, खुदा के बेटे खुदा की हुजूर में थे, तो उनके दरमियान कौन आया जी? शैतान आया। खुदा ने पूछा और उसने क्या फरमाया कि मैं दुनिया की तो सैर करते हूँ, तो वो खुदा की रियल जो प्रेजेंस है, जहाँ पर तख्त है, वहाँ पहुँच जाता है। There is no way you can stop him. Whenever the devil comes like this, he brings temptations for his people. क्यों? इसलिए कि खुदा अपने लोगों पर रश करता है. That God is a part of his own people, and the devil is like this. He wants to bring temptations upon his people. But the word of God is so powerful. The word of God is a living word. The love and joy and peace is there. When the love of God comes out from God, the love is God. When the word comes out from God, the living word of God, hallelujah. So we must understand his business, because we are the children of God. We were created in the image of God. Hallelujah. Praise Jesus. The God is only one God. There is no other God. There is none like him. The Bible says, hallelujah. We were created on the image of God, not the images of God, but image of God. हम खुदा की शबीह पर बनाए गए, शबीहों पर नहीं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम बपतिस्म की बात करेंगे तो उसमें भी जब यीशु मसीह ने ये हुक्म दिया कि उनको बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो, नामों से नहीं, बल्कि बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम से, ये एक ही नाम है। हालेलुया, प्रेज जीसस। अपने आप को खाली करें। Just empty yourself from every worldly thought, every worldly thing. Your mind should be clear right now. As I said, I'm very much serious now. Just clear yourself. Clear yourself. Hallelujah. Your body, mind and soul should be clear from every worldly thought. Hallelujah. Praise Jesus. Praise Jesus. When you empty yourself and clean yourself by the blood of Jesus, by the power of the Holy Spirit, and you may say, you can say this, Lord Jesus, I cleanse myself by the power of the Holy Spirit. I'm clean now. Lord, I'm clean by the power of the Holy Spirit. Lord, I'm clean. Come. I'm empty now. I'm not a worldly man anymore. Come and live in me. Fill my body with your Holy Spirit and make your home in my body. My body is your body. Hallelujah. Praise Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Oh, hallelujah. खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तारीफ तेरी सताइश करते हैं, क्योंकि खुदा हम तो भला तेरी शफ़क़त आती है। यीशु, हम उन तमाम अज़ीज़ों को खुदा हम तेरी हुज़ूरी में रखते हैं जिन्होंने अपने आप को अभी किसी वक्त खाली किया, पाक साफ किया, ताकि तेरा रूह हमारे अंदर बस जाए। खुदा हम तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। खुदा हम यीशु हाज़िर जमायत पर तेरी बड़ी बरकत चाहता हूँ, और खुदा हम चाहता हूँ कि अपने कलाम के वसीला से खुदा हम तो हम सबको बड़ी बरकत देना।
यीशु हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि जहाँ तेरा नाम लिया जाता है वहाँ इब्लीस की खूब तक ठहर नहीं सकती, क्योंकि वो थरथराती हैं। और स्पेशली जहाँ तेरी वर्शिप की जाती है वहाँ तो वैसे ही इब्लीस की कुव्वत ठहर नहीं सकती, क्योंकि वो जलस करता है। खुदा यीशु हम तो तेरी वर्शिप करते रहेंगे, तेरी प्रस्तश करते रहेंगे, तुझ में बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। यीशु के नाम में खुदा ये सारी बरकत मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज काफी अरसे के बाद हम एनकाउंटर हुए हैं इब्लीस की इस तरह की कुव्वत से। ये एक बात याद रखें, कुछ जरूरी नहीं है कि जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ वो आप भी एक्सपीरियंस करें। बाज़ दफ़ा ऐसी बातें हमारे जहन में आती हैं कि हम क्यों नहीं देख सकते, हमें नज़र क्यों नहीं कोई चीज़ आती। Why we can't see? You know, you can see. I can show you from the Bible. You can see, but there are some principles. Okay, there are different types of gifts mentioned in the Bible. You got to pray for your gift. God grant you with this gift, and you can see clearly. Not a problem. Okay? So, sometimes this happens. Many times this happens. और बात तो ऐसा भी हुआ है, we got so much experience now, because I'm in the ministry from a long time now. I got experience when there was a time that one young man used to speak in tongues. When we speaking in tongues, and he joined us speaking in tongues. And he was speaking in tongues with us about 6 months, maybe more than that. And one day there was a very experienced pastor come to visit us in our church. And what happened? Suddenly when the boy starts speaking in tongues, and the pastor asked him to come here, and he refused to come. Then the pastor had to go there. And then the pastor prayed over him. And then the demons actually left the boy. Gone. And then we come to know, then pastor come back to the altar and speaking to the congregation, and he told us, don't you know that the devil can speak in tongues? He can copy you. Whatever you said, he can say. Because he knows heavenly language. And he can copy you. Okay? And this boy was speaking in tongues from a long time among you, and you didn't know that. From today, he's not going to speak anymore. Why? Because the demon who used to speak in tongues is gone. But he had to pray again. Then the Holy Spirit is going to fill him, and he will speak in tongues. It's not a learning thing, it's experience. So there are so many things in the Bible you can't learn. Sometimes you can't feel it. It's the experience. So when you experience, then you realize what this means. Like Paul was, you know, the Purush Rasool jisko kehte hain. He was going to the way to Damascus. And what purpose? To killing Christians, dragging out from their house, and torture children and women, and the old age people. This he was doing for the Lord, for his own God, Jehovah God. But Jesus met him on the way, and what he had, he did not learn. You know that the Paul, Purush Rasool, he never learned the gospel. He experienced the gospel. He experienced Jesus. Other 12 disciples, they learned. One betrayed Jesus,
The 11 disciples were there, they learned from Jesus. Jesus teach them. You see? But Paul, he experienced the gospel. And you see his writings, very powerful. Because he has experienced the Lord. So we need experience. Hallelujah. तो कोई बता सकता है कि हम आज स्टडी करेंगे, लेकिन किस बात की स्टडी करेंगे? बैप्टिज्म की. तो थोड़ा सा टेस्ट भी करेंगे. What's the Greek word for bapto? Yes. What's the bapto mean? To dip. Bapto का मतलब होता है to dip, यानी डबोना. और बैप्टोज का क्या मतलब है? डबो कर बाहर निकालना. डबो कर बाहर निकालना. तो बैप्टो का मतलब यह है to cover with the liquid. You know, like ये ग्लास है लिक्विड का भरा हुआ, और if I dip this pencil into the water, and what the water gonna do is cover, you know, the pencil from all sides. You see, that's the bapto, to dip, which means liquid जो है वो cover कर ले, you know, चारों तरफ से. तो ये इसका मतलब होता है to dip, covered by the liquid. You see, बाइबल में कहीं पर भी स्प्रिंकलिंग का जो बैप्टिज्म है उसका कोई जिक्र नहीं आता कि स्प्रिंकल करके वाटर जो है उसको बैप्टाइज किया जाए. वी ऑलरेडी हैव सीन दिस. Salvation Army का एग्जांपल मैंने दी. There are many organizations, there are many people, they baptize differently. और ये इख्तियारी है, लोगों ने अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक इसको इजाद किया. We don't want to go in history how they start and why they start, why they're doing this. We will go through the teaching when we're going to start about the cult. Like we're going to study Jehovah's Witness. We've done the Mormonism already. I think we cover half of it because these subjects are too long. Every Sunday we meet just for 1 hour, you see. Teaching is only 40-45 minutes, you see. So we're trying to cover everything. We're going to learn about Jehovah's Witness, Seventh-day Adventists, and many people think, oh, Seventh-day Adventists is not a cult. But I will tell you, there is no difference between these organizations, you know. Slightly different. But they don't tell you what they believe. Only the leaders जो हैं उनको पता होता है कि what they believe and how to make a fool to other people. So we must know the real teaching what they believe. तो बैप्टिज्म की भी अपनी एक टीचिंग है. बाद ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं वो कहते हैं कि बैप्टिज्म इज नॉट नेसेसरी. You don't need baptize anyway. They completely deny the baptism. You see, some say, okay, yeah, that's fine, just to sprinkle the water, it's fine. You see, but baptism did not mean that. Okay. उर्दू में इसको बपतिस्मा कहा जाता है. इंग्लिश में बैप्टिज्म जो है ये वर्ड ग्रीक से ही बनाया गया है, लिया गया है. और फिर हमने देखा था कि जो फर्स्ट जो कमांडमेंट था खुदावंद यीशु मसीह ने जिंदा होने के बाद दिया, वो यही कहा था. मत्ती 28 बाब में, मरकस 16 बाब में भी हमने देखा था कि जाके सब कौमों को शागिर्द बनाओ, मेक डिसाइपल फ्रॉम ऑल द नेशन. और आगे क्या था? बैप्टाइज देम इन द नेम ऑफ द फादर एंड द सन एंड द होली स्पिरिट. इट सेज इन द नेम, नॉट द नेम्स. ये बात याद रखें, बिकॉज़ गॉड इज वन. God the Father, Son, the Holy Spirit, they are one. We will go through this teaching later on, the oneness of God. Okay? We will. I will teach you definitely. Because many people are confused about the Trinity because many people claim, oh, Trinity word is not mentioned in the Bible. There are so many things not mentioned in the Bible, but we do believe these things, and we will go how and why we believe these things. Okay? 3R1, we will teach. I will teach you about this. Okay? So, we know that Jesus said, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. In the name. Not names. It's not plural word. Okay? Name of the word. जैसे मैंने बताया कि दुआ में करा था, मैंने किया था, पहले मैंने बताया कि we are created
in the image of God, not the images of God. उसकी छवियों पर नहीं, बल्कि किस पर? इमेज पर बनाए गए हैं। हालेलुया। और ये खुदा का फार्मूला है और खुदा जानता है। फिर हमने देखा था बैप्टिज्म जो है उसके हवाले से काफ़ी सारी बातें हमें देखेंगे कि ये निजात के लिए भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बाद लोग ये समझते हैं इसका निजात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। देयर इज अ लिंक बिटवीन बैप्टिज्म एंड साल्वेशन। तो साल्वेशन आपकी उस वक्त तक अनाउंस जब तक नहीं करते, ऐलान नहीं करते। बैप्टिज्म लेना जो है वो ऐलान करना भी है, अपने आप को पेश करना भी है। जब आप शर्माएंगे इससे, तो यीशु मसीह ने क्या बोला था? जो यहाँ शर्माएगा मैं भी शर्माऊंगा, जो मेरे लिए यहाँ नहीं बोलेगा मैं आपके सामने नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो वहां हमारी शिफायत करता है। ही इज सीटेड देयर ऑन द राइट साइड ऑफ द फादर, ओके, राइट साइड ऑफ द फादर, एंड वो हमारी जो है शिफायत करेगा, इंटरसेशन जो है वो होगा, और खुदा यीशु मसीह जो है वो वहां बात करेगा आपके लिए। लेकिन अगर आप शर्माएंगे बैप्टिज्म लेने से, आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो है ना एज की वजह से भी शर्माते हैं। ओ जी मेरी इतनी एज हो गई है, हम तो शर्म आती है, उनकी बैप्टिज्म लाइक करना। You don't need to feel ashamed about that. Baptism is very important for the new life. इस ऐलान जैसे अनाउंसमेंट करना होती है, बैप्टिज्म इज लाइक अनाउंसमेंट, यू हैव टू डू दैट। ये इकरार करते कि जब यूहन्ना अस्तबागी, जॉन द बैप्टिस्ट, व्हेन ही बैप्टाइजिंग पीपल the river of Jordan, what people were doing, they come to John the Baptist, okay, और अपने गुनाहों का इकरार करते थे, they repent from their sin, okay, वो ऐलान करते थे, यस, वो गिन गिन का नहीं बताते थे। जैसे आपको पता है कि कैथोलिक चर्च में एक ट्रेडिशन है, you know that, कन्फेशन का। किसी को पता है जो कैथोलिक चर्च के जो लोग हैं, you know that, कि देयर इज अ ट्रेडिशन, फादर जो है वो एक विंडो के पीछे बैठता है और पीपल जस्ट गो देयर बाय द विंडो एंड द कन्फेशन वो करते हैं, दे जस्ट कन्फेस देयर सिन बिफोर द फादर, यू नो, और वो उनको शायद मुझे नहीं पता वो गुनाह को माफ करता है उनको, या उनके गुनाहों को माफ करता है, कन्फेशन हो जाता है। तो लेकिन ये बाइबल में ये रस्म नहीं पाई जाती। इट्स नथिंग मेंशन इन द बाइबल। देयर वाज ट्रेडिशंस, इट वाज अ रोमन ट्रेडिशन in when they were worshipping idols. It was a Roman tradition, and there's so many traditions actually. We're not against the tradition, it just travel into the community. You know, अगर आप अफ्रीका में चले जाएं तो there's so many Christians you will see, they're Christian, but they never left their tradition. They're just doing according to their traditions what they believe. So but they're Christian, so we're not against them, you see. तो ट्रेडिशन जो है वो मरते नहीं हैं, वो समटाइम ट्रैवल हो जाते हैं। तो ये है कि जो बैप्टिज्म की हम बात करते हैं, बाकी बातें जो हम बातें करेंगे। बैप्टिज्म की बात करते हैं तो बैप्टिज्म का जो मतलब है वो है टू डिप, ओके, डबोना, और बैप्टोस जो वर्ड है उसका मतलब है दबो कर बाहर निकाल लेना, और इसका मतलब ये है वॉश करना भी है, वॉश करना भी है। अगर डिक्शनरी में देखेंगे तो उसमें आपको 5 या 6 नंबर मिलेंगे, हर नंबर के आगे उसकी डेफिनेशन लिखी होती है। इसका मतलब वॉश करना भी है। टू डाई वो अभी हम देखेंगे रोमन में, आज इसको हम कवर करेंगे। हालेलुया। ओके, तो हमने देखा कि जो लास्ट of the Father and Son and the Holy Spirit, Matthew 28 verse 19, or the first message when it was preached. Anybody remember? The first message after the Jesus resurrection, the first message was preached not by Jesus but somebody else. In the book of Acts chapter 2 verse 38. By Peter. That was the first message. The last message preached by Jesus, the first sermon was preached by the Peter in the book of Acts. कौन निकालेगा? The book of Acts chapter 2 verse 38 पढ़ेंगे। Learn the verse. Anybody?
हम इसको कवर करेंगे जल्दी जल्दी। 38 वर्ष पढ़ेंगे 2 की। लिखा है, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो, चूंकि उन्होंने पूछा था। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी। तो पतरस और बाकी सुनों से कहा कि आए भाइयों, हम क्या करें? They asked the question, what should we know? We know Jesus now. We know the teaching. We know everything what you want us to know. We know that Jesus was real. But what should we know? What should we do now? What can we do now? There are many Christians, they don't know what to do, how to respond the ministry, what to do. The first thing, if you want to be a Christian, the first thing the Peter says, Tawbah karo, repent. The first thing, what he said, repent. और आगे क्या लिखा है? और हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु के नाम पर बपतिस्मा ले। There is the answer of your question. Why we need a baptism? Because of your sin. What it says in English? Verse 38 last. He just said to them, repent, and each of you will be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. There's a reason. For the forgiveness of your. You will receive the gift of the Holy Spirit. For the forgiveness of your sins. For, yes. तो रीजन क्या उसने बयान किया है, किसके लिए लेना है? For the. Yes. Yes. You know, if you go into the shop, okay, and ask you why you going to the shop, and what you going to say? For this reason. For the cup of tea, maybe for the can of something, for anything. It's a for, you see. But here it says for the forgiveness of your sin. And this baptism is something telling us why they need to repent and forgiveness of their sin, as I told you in the last sermon, because they were Jews. This preaching happened in Jerusalem, और जू वहाँ मौजूद थे, और जूस जो हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनको रीपेंट होने की जरूरत है। और इसलिए उनको रीपेंट होने की जरूरत है because they were carrying the law of God. They know the principles of God. They know what God wants us to do, how to live godly life. But they were failed, and they need to repent. And the people, those have know nothing about God and teaching of God and the law of God, what they have to do then? They have to believe. You see, there is the problem. You know, some preachers, they preaching differently. They're not giving you reason. जो लोग हैं वो प्रीच करते हैं, उन्हें जिसका गुनाह के साथ तो कोई तल्लक नहीं है, इसलिए बैप्टिज्म जरूरी नहीं है. But for the Jew, for the forgiveness of sin, they must repent. But for the Gentiles, they must believe and receive the water baptism. So there are two generations, two nations, two groups, and two kind of people are there. Gentiles and the Jews. The teaching for the Jews is different in the Bible, and the teaching for the Gentiles is different in the Bible. So we need to make a separation in two groups, you see, understanding के लिए. जब आप पढ़ते हैं कुछ भी, anything you read in the Bible, you must think in your mind, is that teaching is for the Jews or for the Gentiles? Then you will understand the Bible. The many people don't teach these things. हमें इस तरह से learn करना है. How we learn the Bible? When you read the Bible, think in your mind, is this teaching or this sermon or preaching is for the Gentiles or for the Jews? For the Gentiles differently. And I can prove in the Bible, you know, there are so many issues was there, and the disciples actually addressed those kind of issues differently. You see? क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जो लोग हैं वो इस बात को जानें, क्योंकि जैसे खाने पीने का मसला आया, उसमें भी जो है ये एक इश्यू था. अगर आप देखना चाहते हैं, जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, ओके, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ टीचिंग बट इट्स जस्ट फॉर एग्जांपल, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. देखिए, अगर निकालें मेरे साथ एक्ट्स चैप्टर 15,
उसकी 19 वर्स से पढ़ेंगे। और ये मैं आपको सिर्फ बताने की हद तक कहना चाहता हूं कि वी मस्ट, जब तक मैं आपको फार्मूला नहीं बताऊंगा कि हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द बाइबल, you never understand the baptism, I tell you. Now we're going to it's a different subject, different topic, but for example I'm going to read for you. Okay, लिखा है verse 19 to 29 हम पढ़ेंगे। Acts chapter 15 from verse 19 to 29। बस मेरा फैसला यह है कि जो गैर कौमों में से खुदा की तरफ रुजू होते हैं, हम उनको तकलीफ ना दें, मगर उनको लिख भेजें कि बुतों की मकरूहात और हरामकारी और गला गोंटे हुए जानवर लहू से परहेज करें। तो पता है कि इन दिस कंट्री इसको ब्लैक पुडिंग कहते हैं, इस ब्लड उस वक्त भी थी। इट्स नॉट दैट इन बाइबल टाइम इट वाज देयर, पीपल वर ईटिंग, दे ड्रिंकिंग ब्लड, दे ईटिंग ब्लड, यू सी, इन द बाइबल इट्स नॉट एक्चुअली परमिटेड। ओके, क्योंकि कदीम जमाना से हर शहर में मूसा की तुरेक की मुनादी करने वाले होते चले आए हैं और वो हर सबत को इबादत खाना में सुनाई जाती है। ओके, आगे खत देख लेते हैं। 22वीं आयत में 22nd वर्स से मैं देखता हूँ। चिल्ड्रन, यू नो दैट वर्स 22, इस पर रसूलों और बुजुर्गों ने इस सारी कलीसिया समेत मुनासिब जाना कि अपने में से चंद शख्स चुनकर पौलुस और बरनबास के साथ अंताकिया को भेजें, यानी यहूदा को जो बरसबा कहलाता है, और सिलास को। ये शख्स भाइयों में मुकद्दम थे, यानी दे वर ऑनर्ड। और इनके हाथ ये लिख भेजा कि अंताकिया और सूरिया किलिकिया के रहने वाले भाइयों को जो गैर कौमों में से हैं, किन में से हैं जी? दे आर जेंटाइल्स, दे फ्रॉम जेंटाइल्स ग्रुप। ओके, रसूलों और बुजुर्ग भाइयों का सलाम पहुंचे। अभी ये खत शुरू हुआ है, इस लेटर। ओके, द लेटर इज रिटन टू जेंटाइल। चूंकि हमने सुना है कि बाज ने हम में से, यानी फ्रॉम द जूइश ग्रुप, ओके, हम में से जिनको हमने हुक्म ना दिया था, वहां जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया कि आपको ये करना, वो करना, ये खाना, वो खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये हराम है, you can eat this and that, you know, a lot of things, घबरा दिया और तुम्हारे दिलों को उल्ट दिया। इसलिए हमने एक दिल होकर मुनासिब जाना कि बाद चुने हुए आदमियों को अपने अजीजों बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजें। ये दोनों ऐसे भाई हैं जिन्होंने अपनी जाने हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम पर नसार कर रखी हैं। चुनांचे हमने यहूदा और सिलास को भेजा है, वो यही बातें ज़बानी भी बयान करेंगे, यानी वो लेटर लेके गए हैं, लेटर, और वो कहते ज़बानी भी बताएंगे, बट यू in writing is authority, writing is authority, okay, क्योंकि रूल कुद्दस ने, अब देखें अथॉरिटी किसकी है? रूल कुद्दस की is the power of the Holy Spirit, hallelujah, Holy Spirit। देखिए, क्योंकि रूल कुद्दस ने और हमने, ये किसने, किसका खाता है ये? रूल कुद्दस ने और हमने मुनासिब जाना कि इन जरूरी बातों के सिवा तुम पर और बोझ ना डालें, यानी होली स्पिरिट। और हमने ये मुनासिब जाना है कि आपके ऊपर हम और बोझ ना डालें कि तुम बुतों की कुर्बानियों के गोश्त से, ओके, बुतों की कुर्बानी, द सैक्रिफाइस फॉर द आइडल्स, बुतों के लिए जो लोग करते हैं, और लहू यानी ब्लड से, और गला गोंटे हुए जानवरों और हरामकारी से परहेज करो, हरामकारी से परहेज करो। ओके, अगर तुम इन चीजों से अपने आप को बचाए रखोगे तो तुम सलामत रहोगे। आगे लिखे वालेकुम सलाम, ये क्या बोलते हैं इसको? वासलाम। ओके, क्योंकि ये अरबी जानते हैं भाई, उनको ज्यादा पता है। ओके, पर एनीवे ये खत था। तो शगीर्द जो थे उनके लिए that was a major issue, how to address the Jews and the Gentiles. The Gentiles have their own issues, they can own their own problems, and the Jews have their own problems. तो यहाँ पर उनको इस तरह से डील किया गया कि बस ये बातें हैं, आपके ऊपर हम ज्यादा बोझ नहीं डालते। If you doing these things,
fine. Don't worry about it. Okay? So that's why when Peter was preaching the gospel and the people asked him, what shall we do now? And he said, repent first. You killed Jesus. You got the Torah. You got the word of God. You know what's good and bad. You know the real God. You must repent first and baptize in the name of Jesus. For what? Forgiveness of the sin. Forgiveness of your sin. तो ये बैप्टिज्म जो है, जो जूस लेते थे, उनका जो बैप्टिज्म था वो था फॉर फॉरगिवनेस ऑफ देयर सिन. ओके. अब बिलीवर्स जो हैं, जो जेंटाइल्स बिलीवर्स जो थे, उनको कैसा बैप्टिज्म लेना, उनका भी अभी देखते हैं. ओके. क्योंकि ये बड़ा जरूरी है कि हम इन बातों को समझें. इफ वी डोंट अंडरस्टैंड दीज इश्यूज, वी नेवर गो टू द डेप्थ ऑफ द बैप्टिज्म. वी नीड टू डू दिस. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. हालेलुया. ओके. तो बैप्टिज्म का मैंने बताया कि लास्ट जो था वो इस तरह से प्रीच किया गया. उसके बाद उनका बैप्टिज्म वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. मरकस की इंजील उसका 16 में देखें. मरकस 16 में जो मैंने बताया था कि जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा. इसी जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा. जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा. और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजे होंगे, वो मेरे नाम से गुरुओं को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को ढालेंगे, और अगर कोई हिला करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरूर ना पहुंचेगा. वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे. तो यहां देखें, वहां पर जूस जो थे उनको ये मैसेज दिया गया. यहाँ पर जेंटाइल्स के लिए मैसेज है कि दे शुड बिलीव एंड रिसीव द बैप्टिज्म. फॉर व्हाट? वो निजात के लिए निजात पाएंगे अपने गुनाहों से, और उनको निजात मिल जाएगी. हालेलुया. पहला पत्रस निकालें 3 बाब. अगर आप ध्यान से सुनेंगे, पहला पत्रस उसका 3 बाब और उसकी 21वीं जो आयत है उसको देखते. लिखा है, देखिए, और उसी पानी का मुशाबा भी, यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से तुम्हें बचाता है. बपतिस्मा क्या करता है जी? He saves you. He saves you. बपतिस्मा क्या करता है? आपको बचाता है. क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं कि जो आप कर नहीं सकते. खुदा ने, गॉड नेवर आस्क्ड एनीथिंग व्हिच यू कांट डू इट. दैट्स द ओनली थिंग यू नीड टू डू. Repent, believe and baptism. ये 3 चीजें तो आप कर ही सकते हैं. अब repent जो है, जैसे आप बिल्कुल विंडो के पास जाकर फादर के सामने अपने गुनाहों का इकरार करते हैं कि गिन के गुनाह उसको बताते हो. Do we need to count our sin before Jesus? He already knows. He already knows you. He knows your sin. He knows your life. You don't need to acknowledge before him anything. He already knows you. Repent did not mean that. Did not mean turn the direction. Stop. अगर आप इधर को जा रहे हैं तो stop walking this side and turn about. This is the repent. Repent did not mean you just speak your sin before somebody or tell your sin to someone. ये इसका मतलब नहीं है. और जो लोग ऐसी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं, गलत है. क्योंकि बाइबल में इसका कोई जिक्र नहीं पाया जाता. हालेलुया. तो बैप्टिज्म जो है वो गुनाह की माफी के लिए भी है. लोग कहते हैं जी इसका मतलब कोई जिक्र नहीं बाइबल में पाया जाता गुनाहों का. है, इसका जिक्र भी है. इब्रानियों में देते हैं थोड़ा सा. इब्रानियों 9 बाब निकालें और उसके 22 आयत जो है उसको हम देखते हैं. हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 22.
क्योंकि इसमें हमें ये पता चलता है कि जो कुछ जमीन पर होता है ये आसमानी चीजों की नकल है। पर जरूर था कि आसमानी चीजों की नकलें तो इनके वसीला से पा की जाए, मगर खुद आसमानी चीजें इनसे बेहतर कुर्बानियों के वसीला से, कुर्बानी के वसीला से, क्योंकि पहले डिफरेंट साफ था, अब जो है डिफरेंट है। अब यीशु की कुर्बानी जो है वो हमें तमाम गुनाहों से पाक करती है। तो जो हमारा जो मदार है जिसके गिर्द हम घूमते हैं वो क्या है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह को हमने मिडिल में रखना है। यीशु मसीह द मिडिल मैन। ओके, सो वी नीड टू नो वेयर वी आर, हमें क्या करना है और यीशु मसीह के साथ हमारा जो है वो लिंक क्या है। ओके, बैप्टिज्म का हम देख रहे हैं। ये तो हमने देख लिया कि बैप्टिज्म जो है इज नेसेसरी, इज इंपॉर्टेंट, वी हैव टू गो फॉर दिस, और प्रॉपर वे में हमने लेना है। शागिर्दों का जो तरीका था हम इसको भी देखते हैं। एक और बात, शागिर्द कैसे बैप्टाइज करते थे। ओके, बात तो ये करते हैं हम कि जो बाइबल में मेंशन है, जो बाइबल कहती है उस तरह से हमने बैप्टिज्म लेना है। अगर बाइबल कहती है कि शागिर्द जो थे वो झट्टा देकर बैप्टाइज करते थे, स्प्रिंकलिंग करते थे, देन वी विल गो फॉर दिस। If the Bible says to dip, then we go for that. Okay? निकालें यूहन्ना की इंजील उसका चैप्टर 3 वर्स 23। कोई भी बुलंद आवाज से पढ़े। जॉन चैप्टर 3 वर्स 23। John said, I am the voice of one shouting in the wilderness, make straight the way for the Lord, as Isaiah the prophet said. Is that right? No. Chapter 3 verse 23. John. Chapter 3. Chapter 3 verse 23. Now John also was baptizing at Ainon near Salim, because there was plenty of water and people were Yes. Because there was plenty of water. उसको तो एक गिलास की जरूरत थी बस, मेरा ख्याल है। Why he giving a reason here? Because there was a plenty of water to dip the man. Otherwise वो कहाँ भी थोड़ा सा पानी जमा होता वहां लेके जाता, कहता बस ठीक है ये छटा दिया बस हो गया। You know, John chapter 3:23 we just said. Okay, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है इस बात को जानना। और यूहन्ना भी शालम के नजदीक अनून में बपतिस्मा देता था क्योंकि वहां पानी बहुत था। There was plenty of water. So for baptism, how much water we need? Much water we need. How much water we need? Much water. Not a glass of water, not a bowl of water. We need a much water, like a sea, a river, आकाश के घर में स्विमिंग पूल, इस तरह का वाटर, big water, much water we need. So here is the baptism mentioned in the Bible, and the people are baptizing people. You see, where is the much water? Not a sprinkling of water, not a bowl of water, not in the glass of water. If there was in those days, if there is a computer text there, maybe they can dip the man in the glass of water. You see, you can show that. You know, so you can see in the film. You know, they just make a small little. I think there was a little film is going for the grandpa. You know? It's something the grandpa is going, the boy is in the wallet. You know? उसमें चला जाता था, कभी किसी में घुस जाता था। क्या नाम था उस फिल्म का? हाँ, इसमें एक चूहा भी होता है। उसकी पॉकेट में, ग्रैंडपा उसकी पॉकेट में चला जाता है। You know, if there is a trick, you know, you can baptize people with this trick. You know, in the glass of water, just dip the person there. That's it. Done it. You see. But John was baptizing people with much water. You see? So we need much water. फार्मूला गलत ना करे। लोगों ने
बहुत सारी बातों में फार्मूला जो है वो गलत कर दिया है. I'm not ashamed of preaching this. It's the reality. You know, it's the same. When you speak to the ministers and other people, it's the same thing. The water is used, you see here. So sprinkling water is fine, you see. It's not fine. Do what the Bible says. Do what the people were doing in the Bible. You see? Okay. चलो ये तो एक हो गया. Acts में चलें. How the disciple actually conduct this service. Chapter 8, verse 38. Acts chapter 8, verse 38. कौन पढ़ेगा? And he gave orders to stop the chariot. Then both Philip and Andrew went down into the water and Philip baptized him. Okay, where he went down? In the water. Went down in the water. Or he just sprinkled the water? He went down. He was under the water. He went down to the water. So that's the proper way. This is how Philippus actually baptized. You know? फिर वर्स 39 भी पढ़ लेते हैं. When they came up out of the water, the Spirit of the Lord suddenly took Philip away. Yes, that's another miracles and signs and wonders happen. You see here, they came out. He was out of the water. And जब वो पानी से ऊपर आया तो देखा, फिलिप्पुस ने इधर किधर गया? Yeah, he was disappeared. और खुदा के रूह ने उसे गायब कर दिया था. लिखा खुदावंत का रूह फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजा ने उसे फिर ना देखा क्योंकि वो खुशी करता हुआ अपनी राह चला गया. तो बैप्टिज्म के बाद खुशी करना चाहिए. आपको मुझे पार्टी देना है, खुशी करना है बैप्टिज्म के बाद. हालेलुया. ओके, ये बात तो पक्की हो गई कि वे जॉन द बैप्टिस्ट वाज बैप्टाइजिंग, देयर वाज मच वाटर. हालेलुया. और यहां पर भी हमने देखा कि फिलिप्पस ने खोजा को जब बैप्टाइज किया तो दोनों पानी में उतरे, फिर वो पानी से ऊपर आया. ओके, फिर एक और हवाला देखते हैं. देखिए आप इसका मकसद क्या है, क्या होता है इसका मकसद. रोमियो निकालें उसका 6 बाब. रोमन चैप्टर 6 में हम देखते हैं. रोमन चैप्टर 6 ये एक्चुअली इसको पूरे को आप पढ़ें तो आपको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी बैप्टिज्म की. यू हैव टू रीड रोमन चैप्टर 6. लिखा है, बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें? क्वेश्चन मार्क. ताकि फजल ज्यादा हो. हरगिज़ नहीं. कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए. नेवर नेवर डू दिस. हरगिज़ नहीं. हम जो गुनाह के इतबार से मर गए क्योंकि उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारे. क्या वो जिन्होंने बपतिस्मा लिया हम उनकी बात कर रहे हैं. क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया. हाँ, here is the point to understand. You know when I read, when Peter preached the first sermon, what he said to the Jews, repent and baptize in the name of Jesus. Repent and baptize in the name of Jesus. For the forgiveness of your sin. There was a different reason there. Okay? और हम अब जो टीचिंग जो दी जा रही है रोमन की जो कलीसिया थी, हम रोमन कैथोलिक की बात करते हैं. अब कोई ये ना समझे कि जब हम रोमन कैथोलिक कहते हैं तो उसमें ऑफेंड होने की बात नहीं है कोई भी. We are going to talk about thousands of years ago.
when there was no Roman Catholic. Okay? ये रोमियो के नाम ये खत लिखा गया. There is no Roman Catholic that time. Okay? जो लोग थे वो बुत प्रस्त थे. ये वो लोग थे जो क्रिश्चियंस को टॉर्चर करने वाले थे. अगर इनको तालिबान का नाम दिया जाए तो गलत ना होगा. They were worse than the Taliban against Christianity. इनकी अगर आप सजाएं देखें कि जो रोमन थे, जो मसीही लोगों को देते थे, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा. ये औरतों की टांगों को ऊंटों से बांध दिया करते थे और ऊंट इस तरह से भगा दिया करते थे और वो अंदर से चीरी जाती थी. बच्चों को चीर दिया करते थे. लोगों को जो गाय की जो ताजा खाल होती है ना, द स्किन ऑफ काउ, उसमें उसको सी दिया करते थे और धूप में रखाते थे ताकि वो जैसे जैसे सुकड़ती जैसे डेथ, बट इट्स वेरी स्लो डेथ. इस तरह की सजाएं लोगों को दी जाती थी. ये ऐसा ग्रुप था. बट एनीवे, अब ये लोग जो थे जो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा जब लेते थे तो वो मसीह में शामिल होने के लिए लेते थे. वो मसीह में शामिल हो जाते थे. मैंने बताया कि जूस के लिए, जेंटाइल के लिए स्लाइटली डिफरेंट टीचिंग, क्योंकि इनको खुदा के नाम का पता ही नहीं है. ओके, तो जो लेकिन हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्योंकि उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारेगा. तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया. तो ये कौन सा बपतिस्मा है जी? जो एक मसीह को लेना है, जो हम जेंटाइल्स हैं जिनको बपतिस्म के बारे में पता नहीं है, वी आर नॉट ज्यू. हमें यीशु मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लेना है. और जो यीशु मसीह में शामिल होता है तो वो किस में शामिल होता है जी? उसकी मौत में शामिल होता है. हालेलुया. वी शेयर हिज डेथ, उसमें हम शामिल होते हैं, उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लेते हैं. हालेलुया. फिर आगे लिखा है, बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए. उसके साथ दफन हुए. कब दफन हुए जी? जरा गौर से सोच के बताएं, कब दफन हुए? यीशु मसीह के साथ कब आप दफन हुए? हम तो बैप्टिज्म की बात कर रहे हैं. We were buried with Jesus. When you received the baptism. He's talking about the baptism. उसमें शामिल होने के बपतिस्मा लिया, उसकी मौत में शामिल होने के बपतिस्मा लिया, और जब हम उसकी मौत में शामिल होते हैं तो उसके साथ दफन होते हैं. अब देखें, जो वर्ड दफन है, इसका क्या मतलब है? यस, वेरी गुड, वेरी गुड. कैसे करते हैं? आगे बताएगा. चिल्ड्रन, how you bury people? What? Can you stand up? Very good. See, she's very nice girl. बहुत अच्छा उसने बताया. In the ground. जब बरी करते हैं तो ग्राउंड में बरी करते हैं. What is the method? You have seen the funeral. How many people have seen the funeral? हाथ खड़ा करें. किस किसने फ्यूनरल देखा है? You never went to the funeral? You seen the funeral? So you see in the ground, you dig the hole, you know. कब्र बनाते हैं ना, उसमें मुर्दे को रख के बरी करते हैं. उसके बाद आप क्या करते हैं? उसमें मिट्टी डाल देते हैं. कवर, कोई कवर. अब बताएं, जो बैप्टिज्म है, it is a symbolic of burial with Jesus. So जिनका बैप्टिज्म जो है वो स्प्रिंकल वाटर से किया गया है, वो यीशु के साथ बरी हुए हैं. बरी हुए हैं आप उनके साथ? आप कैसे आंसर करोगे इस बात को जो रोमन 6 में हमने पढ़ी है? हाउ वी आंसर दिस? Because you didn't go in the water. You didn't go in the water. You did not bury. हम उसकी मौत में शामिल नहीं हुए. ये एक्चुअली तो
ये जो टीचिंग है इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए. इट डजंट मैटर वेयर वी कम फ्रॉम. आर वी जेंटाइल, ज्यूज, कैथलिक, योर विटनेस, सेवेंथ एडवेंटिस्ट, मोर्मन्स, Pai Mission, whatever you can say, wherever you come from, the Bible is not belong to any denomination. It's the word of God. Why should we ignore the teaching of, it doesn't matter your life. So I'm not talking about your life. I'm not talking about anything else. You can live as you like. It's not my concern. My concern is teaching of the word of God. Do not ignore this teaching. How can we justify it? But the Bible says, जितनों ने बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया और उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, और आगे लिखा है कि जब उसके मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए. जब हुए ही नहीं तो बपतिस्मा ही नहीं हुआ. अगर आप यीशु के साथ पानी में दफन नहीं हुए तो आपका बपतिस्मा नहीं हुआ. भले आप झंडे के नीचे से गुजरे हो, थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल किया हो, या बारिश में खड़े करके आपको दिया गया हो, या पानी का गिलास है वो ऊपर फेंक कर दिया गया हो, या कैसे भी दिया गया हो. If you're not fully covered, you're not fully buried. You have to. हालेलुया. फिर हम आगे देखते हैं, ताकि there's a reason now. Okay, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह आगे क्या लिखा है, हम पढ़े, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें. क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबत से उसके साथ वाबस्ता हो गए तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबत से भी उसके साथ वाबस्ता होंगे. This is circle. Born, Jesus was born, hallelujah. Then he died, buried and rose again. आपने तो पहला स्टेप भी नहीं पूरा किया. जिनका बैप्टिज्म नहीं हुआ, we haven't actually take the first step. We need to take first step. Rebirth, बर्थ होना बड़ा जरूरी है, और उसके बाद उसकी मौत में शामिल होना बड़ा जरूरी है. We have to share. हालेलुया. और उसके बाद जब हम उसके मौत में शामिल होते हैं तो फिर जिंदा होने में भी तो शामिल होंगे ना कि नहीं. जब हम उसकी मौत में शामिल होंगे, उसके साथ बरीड होंगे, तो ये तो नहीं कि बरी हो गए पानी में तब ऊपर ही नहीं आना, कि यीशु तो जिंदा हुआ ना. तो इसलिए जब जो बपतिस्मा है वो यीशु मसीह के मुशाबा है, इसलिए हम उसको में शेयर करते हैं. इसलिए हम यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लेते हैं. जब पानी का बपतिस्मा होता है तो यीशु मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा होता है. उसके साथ बरी होते हैं, यानी पानी के अंदर जाते हैं, फिर उसके साथ जी उठते हैं, नई जिंदगी हम हासिल करते हैं. हालेलुया. तो इस तरह से हम पुरानी चीजें जो हैं वो खत्म हो जाती हैं. चुनांचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए. हम पानी में क्यों उतरते हैं जी? गुनाह का बदन बेकार करने के लिए. हालेलुया. ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहे. Then you rose again when you come out from the water. हालेलुया. इसमें लिखा कि फिर हम गुनाह की गुलामी में ना रहे, क्योंकि लिखा है जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ. गुनाह से बरी हुआ. जो मर गया, the person who died is free from any kind of law. You see, बरी, गुनाह से भी बरी हो गया वो. There is no sin anymore. जो मर गया, अब देखिए मरा बंदा गुनाह करता है. कभी आपने देखा है कि मुर्दा बंदा उठा, उसने गन निकाली, अपने कफन से मर्डर कर दिया? यह फिल्मों में हो सकता है, नॉट इन रियलिटी. हाँ, ड्रामों में, फिल्मों में ऐसा हो सकता है, but not in reality. You never seen a person, did you? ऐसा नहीं होता. You see,
तो जो यीशु मसीह के साथ हुआ वो गुनाह से भी बरी हुआ, और जो यीशु मसीह के साथ उठ गया वो यीशु मसीह की दी हुई नई जिंदगी लेके उठता है। हालेलुया। फिर वो गुलामी में नहीं रहता। बस जब हम मसीह के साथ मुए तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी। अगर हम यीशु मसीह के साथ मुए तो जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि दोबारा बपतिस्मा नहीं होता। ये बात याद रखें, क्योंकि हम बाज दफा इस तरह समझ बैठते हैं कि शायद अच्छा ये बपतिस्मा सही नहीं था, अब दोबारा ले लेते हैं, ये वाला बपतिस्मा नहीं था दोबारा ले लेते हैं, रिपेंट दोबारा हो जाते हैं। क्योंकि जब कोई ईमानदार गुनाह में गिर जाता है या दोबारा उसमें चला जाता है तो उसके लिए बाइबल में एक आयत लिखी हुई है कि जैसे कुत्ता अपनी कैद की तरफ दौड़ता है, इसी तरह का ये शख्स है जिसको इतना पाक कर दिया जाए, इतना पाक कर दिया जाए यीशु के खून के वसीला से, तो वो शख्स फिर गुनाह में गिर जाए तो उसके लिए उसको नया बनाना फिर मुश्किल लगता है नहीं है। हालेलुया। तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम पानी में नीचे बरी होते हैं, तो यीशु मसीह की मौत में शामिल होते हैं। हालेलुया। तो हमने देखा कि जो लोग हैं जब बपतिस्मा देते थे तो वहां देते जहां ज्यादा पानी होता था, वहां बपतिस्म का जो अमल था वो किया जाता था। बपतिस्म जो है वो चर्चेस में किस तरह दिया जाता था इसको भी हम देखेंगे। अभी ये पूरा नहीं हुआ, अगले संडे थोड़ा इसको और मज़ीद डिग करेंगे कि जो बपतिस्मा है जो चर्चेस में कैसे दिया जाता है। आज हमने देखा है कि बपतिस्मा जो है ये पूरे तौर पर पानी में जाने के नाम को बपतिस्मा कहा जाता है। हालेलुया। बपतिस्मा जो है ये लेना जरूरी भी है। इसका मतलब है कि हम यीशु मसीह के साथ दफन हुए, यीशु मसीह के साथ बरी हुए। हालेलुया। जब ऊपर आते हैं तो यीशु मसीह के साथ हम नई जिंदगी गुजारते हैं। तो बहुत सारी बातें जो हम बपतिस्मे के हवाले से हमने देखी हैं, और हम जानते हैं कि बपतिस्मा जिन लोगों ने लेना है वो अपने आप को प्रिपेयर करें। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योरसेल्फ। हालेलुया। क्योंकि हमारी जो कैटेगरी है अब वो जूइश तरह की है। I'm not saying we are Jew or we are Israeli, something like that. It's not my claim. Okay, we are like them. Why we like them? They know the word of God, we know the word of God. We are not Gentiles anymore. Okay? We are not Gentiles anymore. Gentiles, the person who know nothing about the real God and His teaching and His word and His law and principle. That person is Gentiles. Okay? But Christian, the nominal Christians are, we know the word of God, we know the real God, we know His Son, we know His word, the living word of God, we know everything. And we consider ourselves the people of God, and we must repent. Repent, not the repent like the front of the window. You got to repent before the Lord. Speak to God. Say, Lord, I repent for my wrongdoing. There's so many things I've done wrong. Children especially can repent. They disobey to their parents and lots of things. Maybe you commit sin against each other, brother and sister. There's a lot of things you can repent of. Okay? You can repent and believe. We need to believe Jesus is real. He's a real Son of God. Hallelujah. And then prepare for yourself for the baptism, for your sin, for your salvation, for your new life. Prepare yourself to bury with Jesus and rise again. So baptism is to dig, go under the water and come out. Baptism is not sprinkling. If you see anywhere in the Bible, any clue even in the Bible, tell me. There is no sprinkling of water, baptism mentioned in the Bible, and people were not baptized. Sometimes, as I said, when we are getting old and we feel ashamed of having a baptism, water baptism, we don't need to feel ashamed of anything. We should be proud of that. We should be proud being a Christian. We should be proud of having a water baptism. We should be proud for reading the Word of God. We should be proud that we are not sinner anymore. We should be proud that we are honest. You know, that's the other way around. Children, when they do
उल्टी सीधी बातें करते हैं, they lot of wrong things they do, and they're proud of that. They laugh, they're having fun. It's nothing you can proud of. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बच्चे स्पेशली जो यंगस्टर होते हैं, जाते जाते पत्थर पकड़ा किसी की विंडो को मार दिया, विंडो टूट गई. That's really nice. And we're going and see the other group of friends. Oh, I did this. That's really nice. This is what we're proud of that. What is this? It's nonsense. Your proudness is if you're righteous, doing the right thing, then you can say, I'm proud of that, I'm not wrong, I'm proud of this, because I'm not doing anything wrong. I'm proud of that, my mom and dad is very happy for me. I'm proud of this. I'm proud of that I received the right baptism. You see? So we need to prepare ourselves. So बाकी बातें जो हैं, the rest of things we will see next Sunday. And next Sunday, I want to pray for the children. Those who wanted to commit yourself for the water baptism. It's nothing going to change. एक मेरी बात याद रखें. Sometimes we think maybe after the baptism, maybe I will look different. Not at all. मेरी बात याद रखें. There will be no difference. Difference will be the life. You got to change. You got to change your life. Lifestyle. See, and we will go through the lifestyle as well, after that. So, but the thing is, the birth is very important first. Born again, se kehte hain, the rebirth is very important. And that only could happen by repenting of your sin. Repent your sin and believe in Jesus. Ready for the baptism. When you receive your baptism, and the rest of the teaching I will deliver, after that, you see, to strengthen your faith. And you will carry on things, whatever you're doing, your study, and whatever is, I'm not going to stop you, stop your study or whatever you're doing at home or at the school. Your life will be the same, but you have to fulfill the righteousness of God. When Jesus came to John the Baptist, and John the Baptist actually don't wanted to baptize Jesus. He gave reason as well. He said, I'm worthy to receive baptism from you. I can't baptize you. But what Jesus said, He said, because of the righteousness, let this happen. So we have to fulfill the righteousness of God. So we need to fulfill the right way. Not the sprinkling of water, not under the flag, not any other method, but the method which Jesus' disciple used to do this. The same method. Like Philip, remember? When he baptized, there was much water, they both went into the water. That's the way. So we will do that. Hallelujah. Let's pray now. हम दुआ करेंगे, टाइम काफ़ी हो गया है, और अपने आप को प्रिपेयर करेंगे. हालेलुया, प्रेज जीसस. हालेलुया, खुदावंद की तारीफ करेंगे. ओह प्रेज जीसस. हालेलुया. सब दुआ करें, अपने आप को प्रिपेयर करें. भाई शमीम से कहूँगा कि दुआ में रहनुमाई करें. भाई शमीम. खुदा हम कादिर मुतलक रहीम आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावा तेरे मीठे अल्फाज के लिए, तेरी इस तालीम के लिए खुदावा जो तूने अपने बंदा के जरिए हम तक पहुँचाई. हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावा. तू तमाम अजीज़ों को, बच्चों को जो खुदावा अभी तक उन्होंने बैप्टिज्म नहीं लिया, तो खुदावा तू जो त्याग का उनके दिलों को खोल, उनके दिलों में इस बीज को दे, ताकि वो इस बात को सोचें समझें और उसके लिए अपने आप को याद करें.
हालेलुया खुदावंद तेरा शुक्र है हमारी कलीसिया के साथ हो उनको बड़ी बरकत दे और हम सब की खुदावंद को बड़ी बरकत दे आपकी खुदा मेरा सिलसिले के आगे चला रहा आमीन। अभी हम आखिर में खड़े हो जाएंगे। Let's stand together and we're going to sing Psalm number 118. सदा तिकर है रहमत साडे रब दी। And this is the last song और इसके दौरान हम अपने हदिये खुदावंद के हुजूर पेश करेंगे। During this song we will take the offering. सदा तिकर है रहमत साडे रब दी। करो रब दी शुक्रगुजारी नेकी निकली है उसे तो सारी। सदा तिकर है रहमत साडे रब दी। सदा तिकर बीमारों के लिए दुआ करते हैं जो मुफ्ती किताब में पढ़े हैं उनको छू उन्हें पाक कर ये दुआ तेरे बेटे अपन का यीशु मसीह के लिए मांगते हैं आमीन। हमारे बाप जो आसमान पर है तेरा नाम पाक होना चाहिए तेरी बादशाह में तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी हो हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम आपका मांगते हैं हमें आजमाइश में पड़ने दे करके बादशाह हम जो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल रबा की मोहब्बत रूह कुद्दस की वफात और बशारत अपने हमेशा तक उन सबों के साथ कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ हमेशा तक होती रहे।
hermanos.